Assalamu alaikum and good evening, students. Welcome to the next lecture of the lecture series. And as you know, we were discussing the plant kingdom, and the today is the last topic of the plant kingdom. And so far, we have discussed the various divisions of the plant kingdom, and having a look again on this very classification, the plant kingdom, all the plants have been divided into the two groups. The first group is known as cryptogamy. They are known as seedless plants, and phanerogames, they are the shabash, they are the plants having the seeds. After that, the cryptogamy is divided into three divisions. The first division is known as thallophyta, second is known as bryophyta, third one is known as pteridophyta. This was the general classification of the cryptogams. They are all seedless plants. And after that, phanerogames, these are the plants having the seeds. And in phanerogames have been divided into two divisions. The first division is known as division gymnospermy, and the next one is known as division angiosperms. Yeah, these are also known as gymnosperms, and these are known as the angiosperms. And the our last topic was the gymnosperms. We have already finished it, and now the last division, that is the division number 5 of the plants, that is the angiosperms. And today our topic is about the angiosperms. What are the angiosperms? These are the plants firstly belonging to the subdivision phanerogamy. That means they are having the seeds. जिम्नोस्पर्म्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, और यहाँ पे आप देख रहे हो द जनरल इन दिस वेरी इमेज या इन दिस वेरी पिक्चर यू आर सीइंग द वेरियस प्लांट्स यूजुअली हैविंग द फ्लावर्स, एंड दीज आर द plants which are known as angiosperms. Yeah, they are belonging to the division angiospermy. So let's have a look on the general features of these plants. इन plants के जो general features होते हैं या किस बुनियाद पे इन प्लांट्स को रखा गया है इन दिस वेरी डिवीजन, दैट इज़ द डिवीजन एंजियोस्पर्मी, वो हम देखते हैं क्यों इनको रखा गया है अलग उन बाकी प्लांट्स से, इनमें क्या खसूसियात है, क्या क्वालिटीज़ है, क्या फीचर्स है जिनकी बुनियाद पे इनको रखा गया है इन द हाईएस्ट डिवीजन in the that is the division angiosperm. So angiosperm having a look on the first feature. The first feature of the angiosperms is that the word angiosperms means is derived from the two Greek words angion means case or casing, yeah, we can say covering, and the sperma means seeds. That means ये वो plants है. Firstly, they are the phanerogames. That means इनके पास seeds present होते हैं, but here the seeds are enclosed within the fruit. यहाँ पे जो seeds होते हैं वो fruit के अंदर बंद रहते हैं, as you are seeing in case of the pear, in case of the apple, in case of the mango. उनमें जो सीड होता है वो फ्रूट में बंद रहता है, फ्रूट से कवर रहता है, फ्रूट उनको केसिंग बनाता है या केस बनाता है बाहर से. दैट इज़ वाई इनको रखा गया है शबाश इन द डिवीजन एंजियोस्पर्म्स या एंजियोस्पर्मी को. एंजियोस्पर्म्स सिंपल हम प्लांट्स को कहेंगे जिनके पास सीड्स होंगे और सीड जो है वो प्रेजेंट होंगे इन द फ्रूट, या वो एनक्लोज होंगे, बंद होंगे या ढके होंगे बाय द हेल्प ऑफ फ्रूट्स. उन प्लांट्स को हम बोलेंगे द एंजियोस्पर्म्स. एंड सेकंड फीचर हम इनका बोलेंगे दीज आर हाईली इवॉल्व्ड लैंड प्लांट्स. अगर इनका हैबिटेट देखेंगे मैक्सिमम में लैंड पे ही रहते हैं, या बाकी हैबिटेट्स में भी रह सकते हैं या रहते हैं, मगर मैक्सिमम भी लैंड पे रहते हैं. और इनके पास सीड्स होते हैं, अब पहले ही हमने बताया, और जो सीड्स है वो प्रेजेंट होते हैं इन द फ्रूट में बंद रहते हैं, फ्रूट के अंदर क्लोज्ड. हमने पिछले टॉपिक में बोला था जिम्नोस्पर्म्स मीन्स दोज प्लांट्स which are having the seeds but they are naked, they are not enclosed within the fruit. उनके पास फ्रूट, उन प्लांट्स के पास फ्रूट्स नहीं होते हैं, बट एंजियोस्पर्म्स में फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं. एंड दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द जिम्नोस्पर्म्स एंड द एंजियोस्पर्म्स. आफ्टर दैट अगर हम बात करेंगे इन केस ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, पिछले टॉपिक में हमने बोला था द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर मॉडिफाइड लीव स्पोरोफिल्स. उनमें हमने मेगा स्पोरोफिल एंड माइक्रो स्पोरोफिल. लेकिन इन अगर हम बात करेंगे अबाउट द
वी कैन से एंजियोस्पर्म्स, इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो प्रेजेंट होते हैं, वो छुपे होते हैं इनसाइड द फ्लावर्स। हाँ, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके फ्लावर के बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम 10th को पढ़ाएंगे, द रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लांट्स। वहाँ पे हम इन डिटेल पढ़ाएंगे आपको स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर एंड हाउ व्हाट आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देयर, व्हाट आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देयर। वहाँ पे हम पढ़ाएंगे आपको इंशाल्लाह। एंड इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द फ्लावर्स। एंड तभी इन प्लांट्स, ये जो एंजियोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म्स को हम दूसरा नाम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। हाँ, दैट इज दीज आर द प्लांट्स विच आर हैविंग द फ्लावर्स। इनके पास फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हीं का नाम, तभी इनका दूसरा नाम भी हम रख सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। हाँ, आफ्टर दैट अगर हम इनकी बात करेंगे लाइफ साइकिल, हाँ, पिछले जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो लावर प्लांट्स की बात हमने की थी, लावर प्लांट्स में जो डोमिनेंट स्पोरोफिटिक डोमिनेंट फेज़ था दैट वाज द गेमेटोफिटिक फेज़। लेकिन जो हमने हायर प्लांट्स पढ़ने स्टार्ट किए, हायर प्लांट्स में हमने देखा कि अब हायर प्लांट्स में जो डोमिनेंट फेज़ होता है दैट इज़ द स्पोरोफिटिक फेज़। हाँ, या पिछले जिम्नोस्पर्म में भी हमने बोला था कि हियर द डोमिनेंट फेज़ ऑफ द लाइफ साइकिल इज़ द जो प्लांट होता है दैट इज स्पोरोफाइट, और उसके पास गेमेटोफाइट होता है लाइफ साइकिल में, बट दैट इज़ रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ द स्पोरोफिल्स। यहाँ भी अगर हम बात करेंगे अबाउट द प्लांट्स विच आर बिलोंगिंग टू द डिवीजन एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म में भी जो प्लांट होता है दैट इज़ टोटली स्पोरोफाइट, दैट इज़ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। एंड ये जो स्पोरोफाइट होता है इस पे भी प्रेजेंट होता है व्हाट द गेमेटोफिटिक फेज, बट दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द दैट इज़ आल्सो रिड्यूस्ड एंड दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द स्पोरोफाइट। हाँ, ये है नेक्स्ट फीचर। इसके बाद अगर हम बात करेंगे अबाउट द वेस्क्यूलर टिश्यू दैट मीन जाइलम एंड फ्लोएम। हम जाइलम जिससे कंडक्शन ऑफ वाटर होता है फ्रॉम रूट्स टू द फर्स, एंड फ्लोएम जिससे कंडक्शन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस होता है फ्रॉम द लीव्स टू द अपवर्ड्स एज वेल एज डाउनवर्ड्स। इसके पास इन एंजियोस्पर्म्स के पास वेस्क्यूलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम होता है एंड दैट इज़ टू वेल डेवलप्ड। हम वेल डेवलप्ड, दिस इज द अनदर फीचर है। और अगर हम इनकी बात करेंगे द अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स, दे हैव आल्सो वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट, लाइक इनमें क्लियरली है विजिबल एंड डिमार्केटेड होता है रूट सिस्टम एंड वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स इनके पास होते हैं, दैट इज अनदर फीचर है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट फीचर, दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स। हाँ, ये प्लांट्स ऑन द अर्थ, ज़मीन पे सबसे ज़्यादा जो प्लांट्स पाए जाते हैं दे आर द एंजियोस्पर्म्स एंड हैविंग अबाउट 3 लाख स्पेशीज़। हाँ, ज़मीन पे अबाउट 3 लाख स्पेशीज़, नून स्पेशीज़ जो अभी तक साइंटिस्ट्स ने जाने हैं, 3 लाख स्पेशीज़ ऑफ एंजियोस्पर्म्स अभी तक साइंटिस्ट्स ने जाने हैं। आफ्टर दैट, या साइंटिस्ट्स को पता है, आफ्टर दैट द नेक्स्ट फीचर ऑफ दिस वेरी प्लांट्स इज दैट इज सीड। पहले ही हमने बोला इनके पास सीड होता है एंड सीड के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिससे प्लांट असल में डेवलप होता है, अभी हम आपको दिखाएंगे इमेज में, दैट इज़ नोन एज द एम्ब्रियो। इनके पास सीड होता है, ये देखो यहाँ पे दिस इज़ द सीड, एंड सीड के पास ये मिडल वाला ये जो स्ट्रक्चर होता है, इसी से असल में नया प्लांट जन्म लेता है या नया प्लांट पैदा होता है। दिस इज़ नोन एज एम्ब्रियो, इसको हम एम्ब्रियो बोलेंगे। एंड इस एम्ब्रियो के पास होते हैं कॉटलिडान्स। कॉटलिडान्स मीन्स दीज आर नोन एज सीड लीव्स। ये है कॉटलिडान्स, यहाँ पे ये एक कॉटलिडन है, यहाँ पे आप देख रहे हो, एंड ये कॉटलिडन है। एंड ये कॉटलिडन एक्चुअल में क्या करता है, दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है इनसाइड द सीड, इसी सीड के लिए ये जो कॉटलिडन्स होते हैं वो स्टोर करते हैं द फूड मटेरियल। हाँ, जब ये जर्मिनेट करता है तब इसके लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं ये कॉटलिडन्स, दीज आर नोन एज कॉटलिडन्स। हाँ, या इसको हम इन कॉटलिडन्स का दूसरा नाम हम बोलते हैं सीड लीव्स। सीड लीव्स क्यों हम इनको बोलेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक प्लांट यहाँ पे है माइमोसा प्यूडिका या टच मी नॉट। ये टच मी नॉट जब इसका सीड हमने बोया है ज़मीन में, और आफ्टर दैट देयर इज द इमर्जेंस ऑफ द या प्लांट ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड प्लांट हैज़ कम आउट ऑफ द सॉइल बाय द हेल्प ऑफ जर्मिनेशन। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो नीचे वाले ये लीव्स हैं, यही लीव्स
जो होते हैं, यही लीव्स एक्चुअल में कहाँ से डेवलप होते हैं, फ्रॉम दीज वेरी कॉटलेडन्स। ये कॉटलेडन्स, ये एम्ब्रियो डेवलप होता है इनटू अ प्लांट, एंड ये जो कॉटलेडन्स इसी के साथ ऊपर आते हैं, बाहर आते हैं, और ये फर्स्ट लीव्स जो होते हैं जो डेवलप होते हैं इन ए प्लांट, डेवलप होते हैं, दे आर अराइज फ्रॉम दीज वेरी स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज कॉटलेडन्स। तभी इनका नाम रखा गया है सीड लीव्स, बिकॉज दे इमर्ज एंड बिकम ग्रीन व्हेन सीड जर्मिनेट। जब सीड जर्मिनेट होता है, इससे थोड़ा एक सैपलिंग बन जाता है, छोटा सा पौधा बन जाता है, एंड ये जो कॉटलेडन्स ये भी बाहर आते हैं प्लांट के साथ ही, और इनको बनते हैं ग्रीन लीव्स, तभी इनका हमने दूसरा नाम रखा है द व्हाट कॉटलेडन्स। एंड these are the various features of the plants belonging to the shabash king division, that is known as angiosperms. And after that, the angiosperms, they have been divided into the two categories या two classes. The first class is known as class monocotyledony, या इनको हम monocots भी बोलते हैं, and second class that is known as dicotyledony, या इनको हम dicots भी कहते हैं। monocots, ये अब इस प्लांट्स जो एंजियोस्पर्म्स है, इनको किस बुनियाद पे, या सारी जो एंजियोस्पर्म्स जो है वो एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ में एक तरह के फीचर्स होते हैं, कुछ में एक तरह के फीचर्स होते हैं, दूसरी तरह के फीचर्स होते हैं। तो इसी बुनियाद पे या किस बुनियाद पे इन एंजियोस्पर्म्स को डिवाइड किया गया है इनटू क्लासेस, एंड द क्लासेस आर मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस वेरी शाबाश नंबर ऑफ कॉटलेडन्स है। ये एक प्लांट में, एक एंजियोस्पर्म में, एक फ्लावरिंग प्लांट में, एक प्लांट हैविंग द फ्रूट्स, उसमें उसका जो सीड होता है, उस सीड में कितने कॉटलेडन्स है, कितने सीड लीव्स है, उसी बुनियाद पे इसको डिवाइड किया गया है इनटू टू कैटेगरीज, टू क्लासेस। द फर्स्ट क्लास इज नोन एज मोनोकॉट्स या मोनोकॉटलेडनी, एंड सेकंड इज नोन एज डाइकॉट। एज द नेम इंडिकेट्स, मोनो मीन्स वन एंड डाई मीन्स टू। गो सिंपली मोनोकॉट कॉट प्लांट्स, हम उन प्लांट्स को कहेंगे जिनके सीड में ओनली वन कॉटलेडन होगी या ओनली वन सीड लीफ होगा, उनको हम बोलेंगे मोनोकॉट्स। एंड डाइकॉट, यहाँ पे जो सीड है, हाँ, बीन का जो है रजमाश, जो कॉमन बीन है यहाँ पे, या पी प्लांट है, उसका जो सीड होता है दैट इज़ द, या पी प्लांट दैट इज़ एक्चुअली अ डाइकॉट प्लांट। हाँ, क्यों डाइकॉट प्लांट हम उसको बोलेंगे, बिकॉज उसका अगर सीड हम लेंगे दैट इज़ हैविंग द टू कॉटलेडन्स, अगर हम उसको भिगोएंगे या रखेंगे इन द वाटर, एंड आफ्टर आप देखेंगे उसको बराबर, हाँ, ये जो सीड होता है दैट गेट्स स्प्लिटेड इनटू द टू इक्वल हाउस, एंड दोज टू इक्वल हाउस दे आर एक्चुअली द कॉटलेडन्स, वो कॉटलेडन्स होते हैं। इसीलिए हम बोलेंगे जो पी है, सनफ्लावर है, एप्पल है या रोज़ है, इन सब का जो सीड होता है दैट इज़ हैविंग द टू कॉटलेडन्स, टू इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड होता है, एंड दोज आर नोन एज कॉटलेडन्स, एंड सो दे हैव बीन केप्ट इन द क्लास दैट इज डाइकॉट्स। एंड मोनोकॉट हम किसको बोलेंगे, मोनोकॉट फॉर एग्जाम्पल मेज, मेज जो होता है, या कॉर्न हम इसको बोलेंगे, या व्हीट होता है, राइस होता है, या ओनियन का जो सीड होता है, इनके पास जो सीड्स होते हैं, उन सीड्स में प्रेजेंट होती है ओनली सिंगल कॉटलेडन, एक ही कॉटलेडन प्रेजेंट होती है, तभी हम इनको रखेंगे किस क्लास में। ये भी एंजियोस्पर्म्स है, ये भी एंजियोस्पर्म्स है, बट इनमें इनका जो सीड होता है उसमें एक ही कॉटलेडन है, बट इनका जो सीड होता है उसमें, ये यहाँ पे आप देख रहे हो, उसमें प्रेजेंट होते हैं भी है ना, उसमें प्रेजेंट होते हैं द टू कॉटलेडन्स। दिस इज़ द एक्चुअल वी कैन सी रीज़न why the angiosperms have, by the help of which angiosperms have been divided into two categories। हाँ, यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट फीचर, the monocots in their seeds are having a single cotyledon, यहाँ पे आप देख रहे हो, और डाइकॉट्स जो है उनके सीड्स में टू कॉटलेडन्स या टू सीड लीव्स प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड डिफरेंस बिटवीन द मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स इज दैट द मोनोकॉट्स दे आर यूजुअली हैविंग अ लॉन्ग एंड नैरो लीफ। हाँ, इनका जो लीफ होता है वो एक उसकी ब्रेड्थ कम होती है, या वो और उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है और पतला होता है, उसकी थिकनेस या उसकी जो होती है ब्रेड्थ वो कम होती है, बट लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, एज यू आर सीइंग इन केस ऑफ द वी कैन से मेज़ प्लांट आपने देखा होगा, उसमें उसका जो
या राइस प्लांट आपने देखा होगा, उसके पास जो लीव्स होते हैं आपने देखे होंगे, वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और पतले होते हैं, या उनकी ब्रेड्स कम होती है। दिस इज़ द वन ऑफ द फीचर्स। हाँ, और अगर हम डाइकॉट्स की बात कहेंगे, या टेक द एग्जांपल ऑफ द एप्पल ट्री, या टेक द एग्जांपल ऑफ द पियर ट्री, उसका जो लीफ होता है वो ब्रॉड होता है, थोड़ा बहुत बड़ा होता है, एंड वो उतना लॉन्ग नहीं होता है जितना होता है इन केस ऑफ द मोनोकॉट्स। हाँ, और अगर हम फिर देखेंगे इन केस ऑफ द लीफ ऑफ द मोनोकॉट्स, उसमें जो वेन्स होती हैं वो रगें जैसी होती है, वेन्स होती है। दे आर एक्चुअली द जाइलम एंड फ्लोएम वेसल्स, विजिबल वेसल्स। वो जो वेन्स होते हैं, अगर आप बारीकी से देखोगे, उसके पास जो वेन्स होते हैं वो होते हैं पैरेलली अरेंज्ड। हाँ, एक के बाद एक, और वो होते हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर, इसलिए हम कहेंगे दे हैव द पैरेलल वेनेशन, या दे हैव द पैरेलल वेन्स। हाँ, द वेन्स इन केस ऑफ द लीव्स ऑफ द मोनोकॉट्स, अगर हम मोनोकॉट लीव्स लेंगे, मोनोकॉट प्लांट्स के लीव्स लेंगे, फॉर एग्जांपल टेक द लीव्स ऑफ द मेज प्लांट, उसमें अगर आप गौर से देखोगे तो वहाँ क्या दिखेगा आपको, ये जो लीव्स होते हैं उनमें जो वेन्स होते हैं वो लकीरें होती हैं, वो दे आर एक्चुअली द जाइलम एंड फ्लोएम, एंड वो होते हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर। उसी को हम बोलेंगे देयर लीव्स आर हैविंग द पैरेलल वेनेशन या पैरेलल वेन्स। और अगर आप बात करेंगे अबाउट द व्हाट शबाश द डाइकॉट्स का, या डाइकॉट प्लांट्स का अगर आप लीव देखोगे, उनमें होते हैं रेटिकुलर, हैं, इन द फॉर्म ऑफ मैश, इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क होता है द वेन्स। वो जो लीफ में वो वेन्स होते हैं या वेसल्स होते हैं, वो वेन्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैश, इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क, दैट इज नोन एज द रेटिकुलर वेनेशन या नेटवर्क ऑफ वेन्स होता है यहाँ पे। हाँ, आफ्टर द नेक्स्ट बाद फीचर जो मोनोकॉट्स होता है, वेस्कुलर बंडल्स, दैट इज द जाइलम एंड फ्लोएम, दैट इज स्कैटर्ड। हाँ, स्कैटर्ड होता है, यहाँ पे एक दिख रहा है आपको, यहाँ पे है दूर दूर है, एंड दैट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए पर्टिकुलर शेप, या पर्टिकुलर शेप इन्होंने इख्तियार नहीं की है, वो स्कैटर है हुआ है कहीं कहीं पे, एंड दिस इज़ अनदर फीचर। मगर अगर हम बात करेंगे ऑफ द डाइकॉट्स, द वेस्कुलर बंडल्स, दैट इज़ द जाइलम एंड फ्लोएम इज़ इन द फॉर्म ऑफ रिंग। हाँ, यहाँ पे आप देख रहे हो रिंग में बाज़ाब्ता ये अरेंज हुआ है यहाँ पे, वट जाइलम एंड फ्लोएम। This is another difference. And if we talk about the floral parts means what shabash, the not sepals and petals। हाँ, sepals, हाँ, petals जो होते हैं, petals, हाँ, ये जो होते हैं petals means these colored, this the colored whorl of the flower, and floral parts जो होते हैं they are या वी कैन सी फ्लावर्स आर ट्राइमेरस, इसको हम जनरल टर्म बोलेंगे ट्राइमेरस मीन्स 3 और मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं। अगर आप मोनोकॉट्स के फ्लावर देखेंगे, मेज़ का फ्लावर देखोगे, राइस का फ्लावर देखोगे, या ऑनियन का फ्लावर देखोगे, वीट का फ्लावर देखोगे, इनके फ्लावर में क्या होते हैं, अगर वहाँ पे आप देखोगे ये जो पेटल्स होते हैं वो दीज कलर्ड स्ट्रक्चर्स, दोज petals will be either 3 or 6, 9, 12, 3, हाँ, मल्टीपल्स ऑफ 3, उसको हम बोलेंगे ट्राइमेरस फ्लावर। हाँ, मगर अगर हम देखेंगे डाइकॉट का फ्लावर, डाइकॉट, हाँ, फॉर एग्जांपल पी प्लांट का, या सनफ्लावर का, या एप्पल का फ्लावर, हाँ, या रोज़ का फ्लावर आप देखोगे, उसमें जो वी कैन से पेटल्स होंगे, पेटल्स आर 4 और 5, या यूजुअली हम इसको बोलते हैं द पेंटामेरस फ्लावर होता है। दैट मीन्स द नंबर ऑफ पेटल्स विल बी इक्वल टू 5, 10, 15, 20, दैट इज़ द 5 और वी कैन से मल्टीपल्स ऑफ 5, एंड इसको हम बोलेंगे पेंटामेरस फ्लावर्स। These are the various differences between the monocots and dicots, and this was the last lecture of the plant kingdom, having a quick recapitulation of the topic। and हमने पहले बात की थी प्लांट्स की, प्लांट किंगडम को हम या तमाम दुनिया के प्लांट्स को डिवाइड किया गया इंटू 2 कैटेगरीज। क्रिप्टोगैमी मीन्स सीडलेस प्लांट्स, फेनोरोगैमी मीन्स प्लांट्स हैंग सीड्स। क्रिप्टोगैमी को 3 डिविजन्स में डिवाइड किया गया। थैलोफाइट्स, उनके फीचर्स आपने देखे, ब्रायोफाइट्स, उनके भी फीचर्स हमने देखे, टेरिडोफाइट्स, उनके भी फीचर्स। एंड आफ्टर दैट द फेनोरोगैमी में कौन से प्लांट्स आते हैं, द प्लांट्स हैविंग द सीड्स। मगर ये जो प्लांट्स अब जिनके पास सीड्स होते हैं उनको भी डिवाइड किया गया है इंटू 2 कैटेगरीज। Gymnosperms means the having seeds but they are naked seeds. Naked seeds means they do not contain fruit,
द सीड्स वो ऐसे ही दिखाई देते हैं, उनके पास कवरिंग नहीं होती है, उनके पास फ्रूट नहीं होते हैं, वो छुपे हुए नहीं होते, वो सीधे इंसान को दिखाई देते हैं। दे आर नोन एज जिम्नोस्पर्म्स प्लांट्स। एंड एंजियोस्पर्म्स हमारा आज का टॉपिक था। एंजियोस्पर्म्स मीन्स द प्लांट्स हैविंग द सीड्स बट दे आर कवर्ड बाय अ फ्रूट, उनको हम बोलेंगे व्हाट द एंजियोस्पर्म्स। और यही हमने अभी आपको बताया। आफ्टर दैट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं इनमें दे आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्लावर, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके बाद होता है इनके लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट फेज होता है या प्लांट जो होता है, दैट इज एक्चुअली द स्पोरोफाइट, दैट मीन्स डिप्लॉयड, xylem and phloem is well developed, हाँ, the vascular tissue is well developed, and सबसे ज़्यादा जो प्लांट्स लैंड पे पाए जाते हैं दे आर द एंजियोस्पर्म्स हैविंग अबाउट द 3 लाख स्पेशीज ऑन द नोन स्पेशीज। एंड सीड्स जो होते हैं, सीड्स के अंदर एक होता है एम्ब्रियो, एंड उस एम्ब्रियो के पास होते हैं द सीड लीव्स, उनको हम बोलेंगे कॉटलिडन्स। एंड इन्हीं कॉटलिडन्स की बुनियाद पे इन एंजियोस्पर्म्स को डिवाइड किया गया है इनटू 2 क्लासेस। द फर्स्ट वन इज नोन एज मोनोकॉट्स, वन टाइप ऑफ प्लांट्स आर नोन एज मोनोकॉट्स या मोनोकॉटलिड हनी भी इनको हम बोलते हैं। एंड सेकंड टाइप ऑफ प्लांट्स दे आर नोन एज डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स में एग्जांपल आती है मेज, वीट, राइस एंड ओनियन। एंड द शबाश डाइकॉट्स में आते हैं पी या बीन आएगा इसमें, सनफ्लावर, एप्पल एंड रोज। उसके बाद मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स की डिफरेंस, मोनोकॉट्स के सीड में सिंगल कॉटलिडन, इसके सीड में 2 कॉटलिडन्स मीन डाई, एंड लीफ होता है लॉन्ग, नैरो एंड हैविंग द पैरेलल वेन्स, पैरेलल वेनेशन, बट हियर द लीफ इज द ब्रॉड एंड इज हैविंग द रेटिक्यूलर वेनेशन, या इसको हम बोलेंगे नेटवर्क ऑफ वेन्स। इसके बाद हम जाइलम एंड फ्लोएम की बात करेंगे, दैट इज स्कैटर्ड। हाँ, वो स्कैटर्ड होते हैं मगर यहाँ पे अरेंज होते हैं इन अ पर्टिकुलर शेप या इन अ रिंग होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड हैं। एंड फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं, जो फ्लोरल ऑर्गन्स होते हैं, वी कैन से द पेटल्स, मैक्सिमम हम पेटल्स की बात हम करेंगे, वो होते हैं या फ्लावर्स होते हैं ट्राइमेरस। ट्राइमेरस मीन्स 3 और मल्टीपल्स ऑफ 3। और यहाँ पे जो फ्लोरल ऑर्गन्स होते हैं दे आर 5 और मल्टीपल्स ऑफ 5, उसको हम बोलते हैं पेंटामेरस फ्लावर। हम एंड दिस वाज ऑल अबाउट द प्लांट किंगडम। Hope you people have understood all the points, all the features, all the topics of the plant kingdom. इसके बाद हम इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स या एनिमल किंगडम। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए या इससे आपको नॉलेज मिली तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए